what is reading and writing mode, as well as there is a program in front of you. And in this program, we will discuss how to enter data in a file and how to write the file and read the file. Okay. This is the smallest program I have already given to you. So we shall start now. Okay. Okay. So the method here is reading. Reading is the method. This is the method. Definition, we can say that it is a definition. It is a reading definition. Okay. So this is an identifier. एक आइडेंटिफायर है. ओके, यूजर डिफाइंड नेम है. रीडिंग मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो. देन इट इज अ हैंडलर. It is a handler, and this is the open method we have already discussed. This is the file. It is in relative path. Okay, because there is no root here. C drive, HTTP, FTP, D drive, E drive. So there is no drive or any protocol here. So we can say that it is in a relative mode. Okay, and here is a mode which is writing mode. So it means the function from here to here will allow us to write in a file. Okay. Second, I have used an str variable here. Okay, so there is no use of str variable right now, but we are using str variable in this loop also. Okay, so here is a list. In this list we have a name here, we have first name, father name, date of birth, and so many. आप कुछ भी इसमें include कर सकते हैं. Okay, so here is the main code for ELE in fields. It says that for every element of the field. So the first value of ELE is, the first value of ELE should be uh, so I'm writing the values. It is ELE. This is the ELE value. This is the data value. And okay, so these are the two values here. So what is the first value of ELE is name. So the first value which is assigned to ELE element is name. Okay. So then in the next line we have a question variable name question, and we have actually concatenate two strings. Here enter your, it is a first string, and ELE has already a character string which is name. So the total कह सकते हैं कि इसमें जो पूरा string जो insert होगा QTN में, it means question में enter your name. ओके, नेक्स्ट इटरेशन में फील्ड की वैल्यू नेम से क्या हो जाएगी, एफ नेम हो जाएगी. तो लिखा हुआ आएगा एंटर योर फादर नेम. नेक्स्ट टाइम में क्या लिखा आएगा, डेट ऑफ बर्थ, तो एंटर योर डेट ऑफ बर्थ. ऐसे तो तीन टाइम में तीन प्रकार के जो इंसर्टिंग स्टेटमेंट यहाँ मिलेंगे आपको. और हमने क्या किया, इनपुट मेथड का यूज किया और उसको डिस्प्ले कर दिया. तो ये जो QTN है इसमें वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम इसमें वैल्यू होगी एंटर योर नेम. तो यहाँ डिस्प्ले होगा एंटर योर नेम. तो आपको एडिटर पे क्या डिस्प्ले दिखाई देगा, enter your name, and it is asking you to enter any digit or any character. So you are going to enter your name, and the name would be assigned to the data variable. अब data variable में क्या आ गया है, name आ गया है जो आपने enter किया है. Okay, next it is the I have add the data with the question. Okay, तो complete data store होगा. data कैसे store होगा आपका, data ऐसे store होगा इसमें कि देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था एंटर योर, और फिर उसमें क्या था, फर्स्ट जो एलिमेंट था वो था नेम. ओके, तो ये तो था QTN की वैल्यू. ये किसकी वैल्यू है, QTN की वैल्यू थी. ओके, इस QTN की वैल्यू है. और अब इस QTN की वैल्यू के आगे क्या आ रहा है, इक्वल्स टू. तो मैंने यहाँ इक्वल्स टू लगा दिया. और उसके आगे क्या आ रहा है, डेटा. अब डेटा में बताइए क्या नेम था, जो भी नेम इंसर्ट किया है, जैसे XYZ इंसर्ट किया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें इंसर्ट हो जाएगी. ओके, सो ये एंटर योर नेम इक्वल्स टू XYZ हमारा क्या हो गया, एंटर हो गया. हो गया. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है आपको कि आपको ये जो डेटा, मतलब ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, ये जो कुछ भी आपने लिखा है यहाँ पर, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम इसके अंदर एंटर करेंगे. क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे. ओके, so we are going to enter this in a file. In which file, this file means sample.txt में. तो sample.txt मैं यहाँ फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और इस sample.txt में पहली लाइन आपकी आ गई है क्या,
एंटर योर नेम। ये पहली फाइल यहाँ एंटरिंग हो चुकी है, डेटा इंसर्ट हो चुका है। फिर से यहाँ लूप ऊपर जाएगी क्योंकि देयर आर एलिमेंट्स, वे भी एलिमेंट्स रिमेनिंग है। तो अब नेम की जगह पर सेकंड एलिमेंट्स क्या आएगा, एफ नेम। क्या एलिमेंट आएगा, एफ नेम। अब एफ नेम हमारा एंटर होगा, फिर से वही प्रोसेस होगी, एंटर योर नेम की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ नेम। लेट सपोज आई हैव राइट पी क्यू आर, क्या रिटर्न किया मैंने, पी क्यू आर। फिर ये राइट करेगा तो अगेन इट विल राइट इन द सेकेंड लाइन, और ये राइट किया इसने सेकेंड लाइन के अंदर। अगेन थर्ड वाले में क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो अगेन डेट ऑफ बर्थ भी किसमें आएगी, थर्ड लाइन में आएगी। सो राइट नाउ वी हैव 3 लाइंस क्या है। लेकिन अभी देखो इसमें हमने कहीं भी स्लैशन का यूज नहीं किया है, तो अगर सिंपली देखा जाए तो एक्चुअली ये सीधी एक ही लाइन आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज देर इज नो स्लैश एंड कैरेक्टर हियर। इफ यू वांट दैट एवरी डेटा इज असाइनिंग, वेट मिनट ना, okay, you can take a screenshot of that. ओके ओके, सो वी आर गोइंग टू रन दैट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करा के देखते हैं। ओके, सो रन कराने पर ये प्रोग्राम कैसा शो होता है और क्या रिजल्ट डिस्प्ले करता है, वी आर गोइंग टू, ओके, हम देखने चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक मिनट रुकना। ओके, so we are going to run that program. Okay, so I simply write press F5 here. Okay, it want to save. Okay, and the program is started. Okay, what I have to do, I simply have to call that program. Okay, so I write reading. So here is enter your name. As you can see here, अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ कोई स्पेस आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ देखिए कोई भी स्पेस नहीं है, एज वेल एज यहाँ पर एलिमेंट के अंदर भी यहाँ पर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। सो देखिए यहाँ कोई स्पेस अवेलेबल नहीं मिल रहा है। ओके, मैं अभी इसे करेक्ट भी करूंगा, पहले इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं कि प्रोग्राम क्या करेगा, ठीक है ना। ओके, सो आई सिंपली राइट माई नेम, लेट सपोज किसी का नाम लिख देते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं सोनिया। आई हैव राइट सोनिया, देन आई राइट हिट एंटर। वाह, अच्छा मैंने सोनिया नाम लिखा है, जो आप देखो इन्वर्टेड कीवर्ड्स में लिखा है, बिकॉज इट इज पाइथन 2.7.8 इनिशियल है। तो पाइथन 3.8 में जो यूज करेंगे ना वो डायरेक्ट नेम लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये पाइथन 2.7 है, देखिए वर्जन यहाँ लिखा हुआ है पाइथन 2.7 है, तो ये इन्वर्टेड कीवर्ड्स इसमें लिखने कंपलसरी है। जैसे हितेश सिंह, आई राइट हितेश सिंह फादर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ भी मुझे लिखनी है, सो आई राइट जैसे 15/08 of 2000, दिस इज द डेट, एंड व्हेन आई हिट एंटर तो डेटा एक्चुअली जब मैंने यहाँ हिट एंटर किया ना तो ये सोनिया और ये पूरा एज इट इज डेटा स्टोर हो चुका है किसके अंदर, फाइल, इस फाइल के अंदर सैंपल डॉट टेक्स्ट के अंदर। चलिए मैं इसे हिट करता हूँ एंटर, ये देखिए। अब आप देखिए लास्ट में मैंने क्या किया था, यहाँ प्रिंटिंग किया था और कोई भी स्लैशन कैरेक्टर मैंने प्रिंटिंग में नहीं लिखा है, तो देखिए आपको एज इट इज जो कंप्यूटर में था वो डेटा एज इट इज प्रिंट यहाँ हो चुका है। ये देखिए डेटा प्रिंट हो चुका है विदाउट एनी स्पेस। एज यू कैन सी हियर देयर इज नो स्पेस हियर, देयर इज नो स्पेस हियर, बिकॉज वी हैवंट मेंशन एनी स्पेस।
हमने प्रोग्राम में कोई स्पेस मेंशन नहीं किया था। अब देखिए मैं यहाँ स्पेस मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्पेस। ओके, जब मुझे डेटा इंसर्ट करना होगा तो मुझे स्लैश एन करना होगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस और मैंने ये स्लैश एन लिख दिया, डन। अब ये क्या होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर है, हर डेटा जो होगा एक एक लाइन में स्टोर होगा। अगेन आई राइट F5, फिर से प्रेस किया, अगेन मैं रिस्टार्ट हुआ, मैंने रीडिंग को फिर से स्टार्ट किया, एज यू कैन सी हियर। देन आफ्टर इट सेज एंटर योर नेम, आई राइट सोनिया, द एंटर योर एफ नेम। देखिए एफ नेम में स्पेस आ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पेस, है ना। क्यों दिख रहा है ये स्पेस, क्योंकि यहां पर क्या किया गया है, हमने प्रोग्राम में चेंज कर दिए हैं। हितेश सिंह, डेट ऑफ बर्थ अगेन 15/08/2000 मैंने डेट लिख दी है। एज यू कैन सी हियर दिस इज द आउटपुट वी हैव गॉट। यहां देखिए अब आउटपुट में कितना वेरी आ गया, कितना वेरी आया आउटपुट के अंदर, आ गया ना। क्यों आया वेरी, क्योंकि वी हैव इंक्लूड अ स्लैश एन कैरेक्टर हियर। सो फॉर द एवरी लाइन, दिस लाइन को, इस लाइन को मैं क्या कर रहा था, इनपुट करा रहा था, और इसी लाइन के अंदर लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, स्लैश एन कर दिया। ओके, आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ दैट। ओके, साइज भी ले सकते हैं, आई राइट साइज इक्वल्स टू len ऑफ डेटा। सो दिस इज द साइज ऑफ दैट डेटा, और ये इनपुट डेटा की भी साइज ले सकते हो, जैसे कि साइज 1 लिख लेता हूं मैं, और len लेंथ ऑफ आप लिख दो डेटा, ये ले लीजिए। तो अब दो साइज आपको देखने को मिलेंगे, आप चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो डायरेक्ट। चलिए मैं प्रिंट करा देता हूं इसको, प्रिंट, ये मैंने प्रिंट करा दिया, तो डेटा की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। ओके, अगेन, और अगर आप चाहो कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। तो प्रिंट, ये मैंने प्रिंटिंग करवा दी, क्लियर। अब ये डेटा कौन सा प्रिंट हो रहा है, विद स्पेस, स्पेस सारे हैं। अब चाहो तो इसके अंदर एस्ट्रिप नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं, तो अब आपको वो भी देगा क्या, चलिए अगेन एंटर योर नेम, सोनिया सिंह मैंने नाम लिखा, सॉरी। सो अब देखिए 12 इसने फर्स्ट साइज दी और 29 ने सेकंड साइज दी। 29 मींस यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने कैरेक्टर हो गए यहाँ पर 29, और इसकी साइज जो क्या है ये है 12 दे रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया, व्हाइट स्पेस को भी इंक्लूड किया जाना होगा, ठीक है ना। तो 6 ये रहे और 6 ये रहे, तो कितने हो गए, 12 हो गए। और टोटल कहा जाए तो कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 29। एंटर योर फादर नेम, जैसे मैंने लिखा हरीश सिंह, देखिए यहां फिर से हरीश सिंह 12 साइज है और 30 साइज इसकी कंप्लीट साइज है। अगेन डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखा जैसे 15/8, डन। ये देखिए अब इसकी साइज क्या है, टोटल यहां से यहां तक साइज क्या 9 है, और टोटल साइज यहां से यहां तक कितनी 25 है। और ये देखो इसमें नेम डिस्प्ले हो गया, इक्वल्स टू ये डिस्प्ले हो गया, इक्वल्स टू ये डिस्प्ले हो गया। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? दिस स्क्रीन वॉज विजिबल टू यू बेटा, सबको विजिबल है? अभी मैंने जो किया किसी को विजिबल नहीं हुआ? आई डोंट थिंक सो। मैं ये कह रहा था आपको, मेरी आवाज आ रही है अभी भी? अब तो आ रही है। मैंने आपको ये कहा कि जो हम यहां पर देख रहे हैं, जो हम यहां देख रहे हैं स्लैशन जो क्या करता है, ये जो स्लैशन है, इस स्लैशन के अंदर क्या है कि एक स्लैशन लगने पर आप देखिए कि ये इस लाइन को एक न्यू लाइन के जैसे ट्रीट कर रहा है। सो अब ये लाइन रीड लाइन से रीड होगी, दिस इज द फर्स्ट लाइन रीड बाय रीड लाइन मेथड। ओके, दिस इज द सेकेंड लाइन रीड बाय रीड लाइन मेथड, दिस इज द थर्ड लाइन रीड बाय रीड लाइन मेथड। सो रीड लाइन यहां पर कितनी लाइंस रीड कर रहा है, 3 लाइंस को रीड कर रहा है। कितनी लाइंस को रीड कर रहा है, 3 लाइंस को यहां पर रीड कर रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है ना। सो 3 लाइंस को हम यहां रीड कर रहे हैं, क्लियर। सो अब ये कब तक रीड करेगा, ये जो फंक्शन है ये डेटा को कब तक रीड करेगा, तब तक करेगा जब तक कि इसको क्या नहीं मिल जाती, एंड ऑफ फाइल या एंड ऑफ लाइन इसको नहीं मिल जाता, तब तक ये क्या करेगा, इसको रीडिंग करता ही रहेगा। तो अब देखो यहां पर
फर्स्ट लाइन रीड किया, देखो ये फर्स्ट लाइन एंट्री थी, इसको रीड करके इसको प्रिंट किया, सेकंड लाइन रीड करके इसको भी प्रिंट किया, थर्ड लाइन प्रिंट करके इसको भी प्रिंट किया। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पर आपको कुछ गैप देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना गैप देखने को। ये गैप क्यों देखने को मिल रहा है बता सकते हैं? यहां हमें गैप देखने को मिल रहा है क्यों? देखिए यहां एक गैप है, यहां एक गैप है, यहां, बिकॉज वी हैव इंक्लूड स्लैश एन। ओके, उसने एक नई एक लाइन से ट्रीट तो कर दिया, लेकिन उस स्लैश एन को भी क्या मान रहा है? एक नई लाइन मानेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, रीड लाइन के अंदर जब हम रीड लाइन का यूज करते हैं तो लाइन के अंदर स्लैश एन को, वो स्लैश एन को भी एक न्यू लाइन की तरह ट्रीट करेगा। सो इफ देयर इज अ स्लैश एन at the end of the line, so you will found a empty line। एक empty line भी आपको यहां देखने मिलेगी, क्योंकि ये जो empty line है इस स्लैशन की वजह से क्रिएट हुई। किसकी वजह से? इसकी वजह से ही क्रिएट हुई है। समझ में आया आपको? इज इट क्लियर? तो ये एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि एग्जाम में भी जब आउटपुट है ना, आउटपुट में ध्यान रखना कि अगर आपने रीड लाइन का यूज किया है तो आपको क्या करेगा वो, जैसे ये लाइन रीड करी, अब जैसे मैं इसमें से एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये लाइन आपने रीड करी और आपने यहां पर लिखा था स्लैश एन, ये देखिए यहां लिखा आपने स्लैश एन लिखा। अब जब रीडिंग होगी वापस फाइल के अंदर से, फिर से वो क्या करेगा, ये रीड लाइन से रीड करेगा, तो वो एक लाइन को प्रिंट किया इसने, अब वो स्लैश एन को भी प्रिंट करेगा। तो ये स्लैश एन को कहां प्रिंट किया उसने? उसने स्लैश एन को यहां प्रिंट किया। तो प्रिंट करते स्लैश एन क्या काम करता है? न्यू लाइन में जाता है, तो न्यू लाइन में चला गया आपका। समझ में आया आपको? इट मींस रीड लाइन में ये ध्यान रखना कि इफ देर इज अ स्लैश एन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट फाइल, लिख लीजिए इसे, if there is a slash n character or new line character, if there is a slash n or new line character in a text file, only in text file है ना, ये डेटा फाइल में या बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ नहीं होता। in a text file, then we found a empty line after every line which has slash n at the end, स्लैश एन एट दी एंड। समझ में आया आपको कि ऐसी कोई भी लाइन जिसके अंदर आपको क्या मिले, स्लैश एन मिलेगा लास्ट के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर? एक एम्प्टी लाइन 100% आपको मिलेगी। ओके ओके, तो जो हमने देखा था इसमें, तो चलो इस फाइल को भी देख लें एक बार, ये फाइल है कहां? ठीक है ना। अब मैं सैंपल डॉट एक्स इसको कर एस डॉट एक्स एस कर देता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? मैं इसको एस, ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि 2-3 इनपुट आ चुके हैं। ओके, आई सिंपली प्रेस F5 एंड आई हिट ओके, एंड सिंपली आई रन दैट कमांड लाइक दिस, एंड दिस इज एंटर सोनिया Singh, then after father name Singh, then date of birth, this is the answer। okay, so अब मैं देख रहा हूं कि वो फाइल है कहां, चलो खोल के तो देखें वो फाइल है कहां। चलिए, तो मैं गया सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर मैं गया प्रोग्राम फाइल्स, क्योंकि अच्छा ये पाइथन यही इंस्टॉल है, पाइथन 27, and as you can see here the file is in library, फाइल आपको मिलेगी, this is the s.txt। so I simply search that file। okay, अब मैं simply search ही कर लेता हूँ s.txt। so it may be documents में होगी ये फाइल। इंटरप्रेटर में देख लेते हैं या कहाँ सेव की जाती है, पाथ ब्राउज़र। चाहे तो हम इसे ऐसे भी, ये रही डेस्कटॉप में प्रोग्राम्स में, देखिए
ये फाइल है, ये देखिए ये जो पाथ है ना आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं, कौन सा पाथ है, ये है एब्सोल्यूट पाथ। दिस इज अ एब्सोल्यूट पाथ। ओके, चलिए तो मैं इस फाइल को ओपन करके देखता हूं। देखिए यही डेटा स्टोर किया था आपने, मैं फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखिए यही डेटा स्टोर किया था। ओके, इज इट क्लियर? ये देखो ये डेटा स्टोर किया था आपने, हो गया ना डेटा स्टोर। चलो आप कहेंगे सर को कुछ चेंज करके दिखाओ, तो चलिए मैं इसमें एक और एंट्री कर देते हैं, कॉमा सिटी, एक सिटी और एंटर करा देते हैं, ठीक है ना। अब हम डेटा इसमें रीड लाइन सब कुछ ओके है, हम एक सिटी एंटर कराए तो आपको पता चल जाएगा, अपडेट जो हो वो अपडेट आपको पता चल जाएगा, हम चेंज किया जो F5 किया, फिर से प्रोग्राम को रन कराया, फिर से हमने रीडिंग को चालू किया, एंटर योर नेम, अब नाम दूसरा देते हैं, अब नाम दे देते हैं डिम्पल का ही दे देते हैं, टेम्पल आर देवासी। व्हाट इज योर फादर नेम बेटा? डिम्पल राजेंद्र, राजेंद्र देवासी, ये फादर नेम लिख दिया, या डेट ऑफ बर्थ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रैंडमली, 15/08 2000, 2000 ही होगी आपकी तो, ठीक है ना। चलिए मैंने रैंडमली लिखा है, ठीक है। एंटर योर सिटी, सिटी कहाँ है बेटा आपकी सिटी, क्या लिखूं? पाली, वेरी गुड। ये 2.7 है इसलिए मुझे कीवर्ड्स लगाने पड़ रहे हैं, जो बच्चे 3.8 यूज करेंगे उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए ये आंसर भी आ गया अपने पास में, और अगेन आई एम गोइंग टू दैट फाइल, और मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया, एज यू कैन सी हियर द डेटा इज अपडेटेड। पर आपने एक चीज नोट की, ये तो पुराना डेटा है, ये पुराना डेटा है, देखो ये डेटा चेंज हो चुका है। मैं इसको डेटा को थोड़ा बड़ा कर देता हूं 20, एज यू कैन सी हियर डेटा इज चेंज, डेटा चेंज हो गया। सभी बच्चों को क्लियर हो गया, डेटा चेंज हुआ, देखो देखो जो मैंने लिखा था वो को वो लिखा हुआ है ना। लेकिन आपने एक चीज नोट की, क्या नोट किया कि यहां पर क्या हो रहा है, ओवर राइटिंग हो रही है, क्या हो रही है, ओवर राइटिंग। पुराना डेटा कहां गया, लॉस्ट, पुराना डेटा तो लॉस हो गया। तो अब हमारे पास जो नया टॉपिक जो कल पढ़ेंगे वो क्या है, अपेंडिंग। क्या पढ़ेंगे, अपेंडिंग। हम क्या करेंगे, जो पुराना डेटा लिखा हुआ वो तो लिखा हुआ ही रहेगा, अब नया डेटा जो होगा उसके नीचे ऐड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है ना, सही बच्चों को क्लियर हो गया, क्लियर ना। तो रीडिंग राइटिंग कंसेप्ट सबको पता चल गया, ठीक है ना। और हमने ये डेटा को स्टोर किया है, सिंपल, बहुत इजी कोड है, बहुत इजीली हम करेंगे। और सीएसवी में भी कुछ नहीं है, 2 लाइनें आपको याद करनी है, 2 लाइनें इसके अंदर इंक्लूड करनी है और ये सीएसवी बन जाएगा। मैं जो नंबर एंटर, अच्छा वो तो बेटा ये मैंने स्टेटमेंट लिखे है ना, यहाँ देखो ये तो स्टेटमेंट लिखे है ना, इसलिए मैंने लेंथ कैलकुलेट की, वो जो 2 नंबर लिखे हुए आ रहे हैं ना वो लेंथ है, मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखे हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एंटर योर, तो जो क्वेश्चन है उसको डेटा एंटर करेगा। अब बच्चे ने जैसे नाम लिखा, जैसे मैंने लिखा डिम्पल आर देवासी, तो डिम्पल आर देवासी की जो लेंथ है वो कैलकुलेट होकर प्रिंट हो रही है, इसलिए वो डबल बार प्रिंट हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने लिखा डिम्पल आर देवासी, तो 15 क्या प्रिंट हो रहा है, 15 एक्चुअली डिम्पल आर देवासी का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्या प्रिंट हो रहा है, 32, वो प्रिंट क्या हो रहा है, ये जो डेटा एंटर हो रहा है पूरा, कौन सा, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा क्या 32 है। तो मैंने इस पूरे का ही क्या ले लिया, लेंथ कैलकुलेट करके प्रिंट करवा दी। अब देखो लेंथ आ गई अपने पास में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए ये डबल डबल बार आ रहा है। आप चाहो तो इनको भी स्टोर कर सकते हो, चाहो तो इसके अंदर भी डेटा के अंदर आप ऐड कर लो, उसके अंदर द साइज ऑफ द नेम, कुछ भी आप कर सकते हो। अब अपने एक्सप्लोर हो गया कि अब कुछ भी किए जा सकते हैं आप। अब देखिए इसमें एक चीज और है, अब अपन अपेंड करना है जो कल करेंगे। तो डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा है वो लॉस हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी पुराना डेटा रहा था वो डेटा लॉस हो गया और नया डेटा यहाँ आ चुका है। तो ये डेटा लॉस को भी हम क्या करेंगे, अब अपेंडिंग फंक्शन का यूज करेंगे, ताकि पुराना डेटा है वो रहे उसके अंदर और नया डेटा उसके नीचे जाकर ऐड हो जाए। फिर हम करेंगे मल्टीपल लाइंस को कैसे रीड करते हैं, मल्टीपल लाइंस के अंदर कोई क्यूरी लगानी है, जैसे कि कोई वर्ड्स को चेंज करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने यहाँ मिल रहे हैं हमको, कैरेक्टर्स कितने मिल रहे हैं हमको,
ये सब हम देखेंगे, डिजिट्स कितनी मिल रही है ये सब हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये एनवायरनमेंट अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इजी भी है और प्रोग्रामिंग भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी। So I'm ending the session now. Hope you have understand all the topics. Or tomorrow we will discuss about how to append the data in the existing file. Okay. So stay home, stay safe, बेटा ध्यान रखो अपना ना। चलिए ठीक है, thank you.